Hello everyone. Welcome to Absolute Shikhar. Welcome to my channel. Today we will hear something about very interesting career, that is writing in OTT, Bollywood industry and advertising industry. So let's welcome Mr. Ramendra Vashisht, who is a very well-known face of Indian film industry, Bollywood and OTT industry. He is working as director, creative director and writer in Mumbai, and his many incredible work like Maricom, Hustlers, and Mahakumbh is very well known, and we have seen all his work. So let's welcome sir and hear something interesting facts about this industry and this career. Everyone. So let's welcome Mr. Ramendra Vashisht. Let's welcome sir. And before we go ahead, please tell something about yourself, sir. About myself, I would say I am primarily a writer, headed towards direction as well, which I also delve into. And born and brought up in Lucknow, studied there, and now that I'm working in Mumbai, I'm working with the media and the film industry. Writers are usually people who are out on a quest. They're always looking for something, whether it's a problem solution or whether it's a brand solution, whether it's a story solution, it's a thriller solution. It's a solution of a love story. So, I mean, writers are primarily what you call solution providers. वो थोड़ा theoretical तो solution providers होते हैं. हाँ, तो ये आपको मतलब यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग जॉब, मतलब थोड़ा आपका ये इंटरेस्ट में था या फिर आपको लगा कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, या बाय चांस यू केम इन, कुछ मतलब थोड़ा ऐसा बताइए. तो इस पे एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं हिंदुस्तान में, कॉल्ड सादत हसन मंटो. आजकल के लोगों के साथ काफी पॉपुलर हो रहे हैं वो, प्योरली बिकॉज ऑफ स्टाइल ऑफ राइटिंग. तो उन्होंने एक बार कहा था कि आई डोंट राइट स्टोरीज, द स्टोरीज मेक मी राइट देम. वाओ. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं कहानी नहीं लिखता हूँ, कहानी मुझे लिखवा देती है. तो ये बहुत पहले उन्होंने कहा था. राइटिंग का ऐसा है कि सरप्राइजिंगली, मतलब मैंने ये अपनी इंडस्ट्री में ये चीज़ नोटिस की है. कई कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों से हमने पूछा कि आप राइटर कैसे बने. तो आई स्टार्टेड प्राइमरली फ्रॉम एडवर्टाइजिंग राइटिंग. तो मैं पहले एडवर्टाइजिंग में आया. मैंने कई साल एडवर्टाइजिंग में एडवर्टाइजिंग राइटिंग की, कॉपी राइटिंग जिसे बोलते हैं. ओके. Slowly I got delved into television and film writing. In fact, television and film writing से पहले I did a sort of television writing, but it was primarily short form writing. तो अगर आपने वो shows देखे होंगे, 9XM पे shows आते थे, बकवास बनकर, बीटल नट्स, भीगी बिल्ली. तो वो सबसे पहले मैंने क्रिएट किए थे 2007-6 में. नहीं, बट आपका हसलर्स मैंने देखा, इट्स अ वेरी मोटिवेटिंग, यू कैन कॉल शॉर्ट्स और ओटीटी, जो भी इसका मूवी है या जो भी इसको कहते हैं. हाँ, it's a mini series. So many in case of सीरीज या Hustlers, I have सीरीज, not. बट इट्स वेरी गुड, मतलब मोटिवेशन फॉर यंग चिल्ड्रन की, मतलब जो भी आते हैं, कई नहीं करना चाहते बीटेक. देयर आर सो मेनी पीपल, वो बीटेक उनके पेरेंट्स उनको कह देते हैं कि करो, या इंजीनियरिंग, डॉक्टर, जो भी है, पर बच्चे नहीं करना चाहते, वो अपनी राह खुद हाँ, चुनते कई हैं. बार पीयर प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर की वजह से आके करते हैं. बहुत सारे प्रेशर. तो हस्टलर्स के केस में आई हैव नॉट रिटन द सीरीज. व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिटन द लिरिक्स फॉर दैट सीरीज एंड आई एम द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ दैट सीरीज. ओके. ओके. तो ओके. एंड व्हेन डिड यू डिसाइड, आपने क्या मतलब कोई डिसीजन था आपका कि टू टेक योर दिस करियर, और कुछ ऐसा हुआ था कि स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कुछ एनीथिंग स्कूल लाइफ में तो करते थे, थोड़ा बहुत छोटे मोटे प्लेस किए थे बहुत स्कूल लाइफ में, बहुत इन यंग एज लखनऊ? में, मतलब छोटे थे लखनऊ में ही. बट ओके. जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तब इट सो हैपेंड दैट आई went into active cultural kind of ओके. what do you call extracurricular. So I was doing music. I was learning music from Batkande. Then I was doing theater also. So it so happened that then that is where the liking towards media etc. developed. But then acting or writing was not so predominantly there. Even though I was acting in theater, we are I was. talking about the 90s, I think. I'm talking about mid 90s, Mid 92 to 90s, 95, 97 rather. हाँ. So at that time, I was doing plays and I was doing music. तो उस दौरान मुझे एडवर्टाइजिंग की तरफ थोड़ा सा, बिकॉज टेलीविजन में एडवर्टाइजिंग देखते थे तो लगता था हाँ यार ऐसा हम कुछ करना चाहते हैं.
I would like to do something like that. Okay. And because of obviously being culturally very active in terms of music and uh, theater, etc., Okay. then I started studying about. I started reading books on advertising, Okay. and Any then pressure, slowly. any pressure from your parents कि ये कौन सी फील्ड चुन रहे हो, इस तरह का कुछ? नहीं नहीं. Thankfully, I didn't have any pressure. My dad Okay. just wanted me to be happy and have a decent career. Okay. Although writing is a very difficult career to choose. Is there any basic requirement or qualification for this career? मतलब if you want to For tell writing, your students, or any inbuilt qualities or skills they should have, कुछ ऐसा मतलब बच्चों के लिए कुछ उनकी स्किल्स या इनबिल्ट क्वालिटीज होनी चाहिए, या फिर कोई क्वालिफिकेशन दे अर्न टू गेट दिस करियर? see, although there are some courses for literary writing, etc., creative writing and all, but Okay. inherently a person should have the desire to tell stories Okay. or to make up stories. और आप कुछ अपना स्ट्रगल बताएंगे? यू आर फ्रॉम लखनऊ, देयर आर सम स्ट्रगल्स पीपल हाँ, गेट वो फ्रॉम होता स्मॉल है, सिटीज। बट ये था कि हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई एम नॉट फ्रॉम मुंबई, तो यहाँ के रहना, जगह ढूंढना, वो सब विदाउट अ जॉब एट हैंड, वो थोड़ा सा इनिशियली डिफिकल्ट था, बट वो पहले 5-6 महीने था. एक बार once I had proven to the people around me that I can do the job and I've learned the craft, then it was not that सो difficult. मतलब एक And तरीके Mumbai से is a city that absorbs you. It lets you, it absorbs you, and it gives you the immense opportunity to do your best. कोई तो अगर फिर मुंबई में काम नहीं कर पाया तो दुनिया में कहीं काम नहीं कर सकता. ओके। हाँ, सही में ओके। इतनी अपॉर्चुनिटी, इतना आसान है यहाँ काम करना. So any message or guidance for students who are from smaller cities, For writing, especially for your UP friends, for Lucknow people, for Gorakhpur, like Bareilly, small cities of UP? Any guidance from देखिए your side? उनके पास तो ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग हथियार है, जो है जबान. Okay. खासकर जो अगर वो लिखना चाह रहे हैं, उनके पास यहाँ पर मुंबई में साफ जबान बोलने और समझने और लिखने वाले बहुत कम हैं. हाँ. तो उनके पास ऑलरेडी वो हथियार है. अब यही है कि उसको और तेज धार करनी पड़ेगी. वो तभी होगी जब वो पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे राइटर्स को पढ़ेंगे, पुराने नए हर तरीके की राइटिंग पढ़ेंगे. जरूरी नहीं कि लिटरेचर ही पढ़ें, पल्प फिक्शन भी पढ़ें, जासूसी कहानियां भी पढ़ें, मजाकिया कहानियां भी पढ़ें, एस्टेरिक्स कॉमिक्स भी पढ़ें. मतलब क्योंकि ये पता नहीं होता कि जो आप कहानी के तार जुड़ते हैं ना, आपको पता नहीं होता है. जब आप कुछ चीज पढ़ रहे होते हैं तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो न्यूरॉन्स बनते जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जुड़ते जाते हैं. वो कहाँ पे निकल के आएंगे आपको पता नहीं होता है, विच इज द बिगेस्ट मिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. ये मैं आपसे इसमें ऐड करना चाहूंगी क्वेश्चन कि जैसे नाउ देयर आर मेनी पेरेंट्स, वो बच्चों से ये कहते हैं कि स्टडी इंग्लिश, मतलब इंग्लिश पे ज्यादा प्रेशर है बच्चों पे कि हम्म. जो भी है कुछ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश कॉमिक्स, इंग्लिश राइटर्स, तो जो हमारा बॉलीवुड है वो पूरा का पूरा हिंदी है, और उसमें प्रॉपर हिंदी जिसको आती है वही इसमें लिख सकता है, जिसमें मतलब हिंदी के वर्ड्स जिसको आते हो। तो ऐसा कुछ है कि बच्चे, जैसे बच्चे आजकल हिंदी पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, आप चाहे बोलिए तो मैं अपने घर में ही हम्म. देखती हूँ कि हिंदी पढ़ाना है तो मतलब उनके लिए प्रेशर है कि इसमें पास हो जाए, जब छोड़ने को कहोगे तो छोड़ देंगे इसे। तो ये तो वो, ये विडंबना है एक्चुअली. तो इसमें दैट आप इज कुछ, वन डाइकोटोमी इसमें आप दैट कुछ एग्जिस्ट कहना इन. चाहे, इसके इसमें आप कुछ ऐड हाँ करना नहीं, ये बड़ी दुख की बात है एक्चुअली. अनसरप्राइजिंगली एंड फनीली आई टेल यू व्हाट इज हैपनिंग. हालांकि है हमारी फिल्म फिल्म बॉडी, जो अपनी बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री है तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, मगर यहाँ सब लोग अंग्रेजी में बात करते हैं. सारी चाहेंगे? स्क्रिप्ट अंग्रेजी में लिखी जाती है. हाँ हाँ हाँ, स्क्रिप्ट इंग्लिश में लिखी जाती है? लिखी जाती, सब इंग्लिश स्क्रिप्ट इंग्लिश में लिखी थी. और अगर डायलॉग लिखने होंगे हिंदी में तो रोमन हिंदी होगी. रोमन हिंदी. तुम कहाँ जा रहे हो, TUMKHANJARAHEHO, तुम कहाँ जा रहे हो. अब धीरे धीरे कुछ एक राइटर्स हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हैं, या नवाजुद्दीन हैं, या मनोज वाजपेयी हैं, या पंकज त्रिपाठी हैं. ये लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, हमको हमारी हिंदी में देवनागरी में आप स्क्रिप्ट दीजिए. तो फिर अब सब भागा दौड़ी करी, देवनागरी कहाँ से लाए, जाके फिर टाइप वाइप करा रहे हैं उसको. फिर एक ओके। लैंग्वेज सुपरवाइजर बेचारा बैठा हुआ है, वो सुपरवाइजर नहीं नहीं नहीं, मात्रा नहीं है इसमें, नहीं दीर्घ नहीं, इसमें रस लगे.
नहीं नहीं, यहाँ पे इसमें बिंदी नहीं लगती है, उसमें झगड़ा चल रहा है कि बिंदी लगेगी नहीं लगेगी, लगेगी कि नहीं लगेगी। ओके। और बहुत सारी जगह पे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको एक तो जबान आती नहीं है, मगर वो वहां पहुंच गए हैं, ओके। जान पहचान भाई भतीजावाद या जिस तरीके से भी डिग्री पाकर पहुंच गए हैं, मगर उनको क्राफ्ट के बारे में ज्यादा कभी कभार नहीं पता होता। उनको ब्रॉड पिक्चर मालूम होती है, बट उनको डिटेल नॉलेज शायद नहीं होती, चाहे वो जबान की हो, चाहे वो स्क्रिप्ट की हो। ओके। तो वहां पे झगड़े वगड़े बहुत होते हैं। अच्छा, जो राइटिंग करियर में अगर एनी स्टूडेंट वांट्स टू जॉइन बॉलीवुड इंडस्ट्री, सो उसके लिए क्या क्या जॉब्स वहां पे है? मतलब एक तरीके से देखा जाए तो नंबर ऑफ जॉब्स लाइक राइटर, डायरेक्टर, हाँ डायलॉग राइटिंग देखिए, भी डायरेक्शन एक अलग अंदर, आता है या राइटिंग के साथ ही इंक्लूड होता है? देखिए मैं मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है या मे नॉट बी ट्रू फॉर अदर्स, कि जब एक राइटर लिखता है तो उसने ऑलरेडी जो चीज लिखी है ना, वो अपने दिमाग में देख ली है, और वो एक तरीके से उसका डायरेक्टर हो गया है, ऑन ऑन पेपर वो डायरेक्टर हो गया है ना। व्हाट डायरेक्टर डज इज, डायरेक्टर को उसमें कुछ ऐसा ऐड करना होता है, वो पूरी चीज को उस तरीके से देखता है जो शायद राइटर ने ना देखा हो। ओके। तो राइटर इज ऑलवेज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द स्टोरी। उसके बाद जो डायरेक्टर जो भी आता है, चाहे वो वही वही राइटर डायरेक्टर बन जाए, फिर वो उसको नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। ओके। ठीक है, तो मतलब तो आप कहना चाहेंगे कि जॉब्स तो हैं, बट यू शुड नो द क्राफ्ट एंड यू शुड हैव स्किल्स फॉर इट। देयर आर या जॉब्स। यू हैव टू नो द क्राफ्ट, और क्राफ्ट सीखें। आप क्राफ्ट को तोड़ें, भले ही तोड़ें, उसका रूल्स ब्रेक करें, अच्छी बात है, मगर आप पहले क्राफ्ट सीख लें, पहले उसको समझ लें कि क्या चीज़ है और कैसे हो रही है। अच्छा तो ऐसे हो रही है, ठीक है मैंने सीख लिया ऐसे हो रही है, बट अब मैं इसे इस तरह करूंगा, अब मैं इसको इस तरह करूंगा। अपनी क्रिएटिविटी के साथ। हाँ, फिर उसमें आपने दो डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स की पढ़े हुए स्क्रिप्ट पढ़ी हुई होंगी, या डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टर्स के आपने फिल्म देखी होंगी, सो देन यू से अच्छा हाँ, उस बंदे ने ऐसे किया था, बट आई विल ट्राई समथिंग लाइक दिस। ओके। तो सर लास्ट इन वेरी, मतलब बहुत ही अच्छा रहा आपके साथ बात करके, एंड इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू सो मच। एनी मैसेज फॉर यंग राइटर्स और चिल्ड्रन फ्रॉम यूपी? नहीं, नॉट यूपी, आई मीन फॉर राइटर्स, यंग राइटर्स, ये बहुत ही क्लीशेड सा वो है, क्या कहते हैं, व्हाट यू कॉल, इट्स अ वेरी क्लीशेड advice that I'll give is read. ओके। Reading is the only thing that will help you write. If you don't read, then you will not be able to write. क्या अगर जैसे आप खाना वाना बनाने आते हैं तो पहले सब्जी सामान इकट्ठा करते हैं ना पहले। बिल्कुल। तो आपने आटा इकट्ठा किया, आपने मसाले इकट्ठा किए, सब्जी इकट्ठा की, ये वो नमक, ये गैस वगैरह। तो राइटिंग भी वैसे ही है। राइटिंग मतलब आइसोलेशन में नहीं होती है। राइटिंग के लिए आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग चीजें पढ़नी, अलग अलग तरीके पढ़ने होंगे, चाहे जासूसी कहानियां हो, चाहे आपको लिटरेचर की कहानियां हो, साहित्य हो, कि इंसान पहले कैसे सोचता था, कैसे सोचता है। तो पढ़िए, अगर पढ़ेंगे तो आपको अपने आप दिमाग काम करने लगेगा। और प्लस फिर सम कोर्सेज जो भी हैं, कोर्सेज भी कोर्सेज। हैं, देर आर कोर्सेज, दे विल टीच यू ऑल दीज थिंग्स, दे विल गिव यू डिफरेंट एक्सरसाइजेज। और राइटिंग का एक बेसिक रूल है, स्टार्ट राइटिंग। सोचिए मत, सोचना आपका काम नहीं है, आप लिखना शुरू करिए। अगर आपने डिसाइड किया मुझे लिखना है, हाँ क्या लिखना है, आपको कहानी लिखनी है, ठीक है, एक बार की बात है, से शुरू करिए, एज बेसिक एज दैट। ओके। तो लिखिए, स्टार्ट राइटिंग। ओके। थैंक यू सो मच सर, एंड इट्स अ यू वेरी वेलकम। वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, एंड ऐसे ही मुलाकात हम दोबारा आपसे करेंगे। आपसे बात श्योर करके श्योर श्योर, बहुत आई होप अच्छा, इट हेल्प्स बहुत। योर स्टूडेंट्स। यस ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। Thank you and all the very best to you and your students. थैंक यू।